Hello, everyone, and welcome back to Scalar's YouTube channel. Scalar has always strived to help you with your smallest and the biggest challenges faced while shaping your career. Today's discussion is about your first impression that you create with your resume. While companies keep receiving endless amount of applications on the daily, your application is bound to be missed if it doesn't stand out. While there are standard guidelines and patterns followed while making a resume, here's how you can make an impactful resume. In the following video, you will be understanding different types of templates that you can use for your resume, what other layouts will be suitable for your relevant industry, and much more. But before we get into any of that, make sure that you subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update from us. Hello, hi, and welcome. I am Mohit Yadav, and I am here today to share what key things I look for in a resume. I will also share my own resume that helped me get into multiple farm companies and also get multiple international offers. I've been fortunate enough to work at companies at the right time. Just to give you a glimpse, I joined Indus as a fourth developer. When I joined Hotstar, it was outsourced to a third-party vendor. So I was responsible for getting that third-party vendor out and build the team in-house. I joined a team in Nutanix, which was essentially a startup acquired just before my joining. All this has given me ample amount of opportunities to continuously learn at my job. Now, apart from learning, one important thing that matters during job hunt is your resume. In this video, I will share my resume with you and talk about 5 points that open door for farm companies. We'll learn the art of making a resume that makes you stand out from the crowd. So let's get straight to it. When I talk about making resume, the number one question that I've been asked is what should be the length of your resume? Or in other words, how many number of pages should be there in a resume? Now, people of varying backgrounds ask me the same question. People with 15 years of experience versus people who are in second year or maybe third year who are trying to apply for internship ask me the same question. Now, before answering this question, consider this scenario. There are over 10 to even thousands of applicants who are applying for a single position. And the employer will not have the bandwidth to screen such large volumes of their resume. Hence, help them out by making your resume concise and to the point. One-page resume will save not only the recruiter's time but also the time of your hiring manager and even the interviewer who's going to come and interview you. But how do you put everything in a single page? That might be the question that is coming in your mind. Now, the answer differs for person to person. There are two kinds of person out there. And my answer is different for both persona of the persons. Now, people who have very less content to fill up the space. These are mostly college going students or people with lesser experience. What you can do is, you can try to add relevant projects that you've done in your college. And if you grade in any of the subject which is relevant to computer science domain, try to add that information as well. Just say, hey, I topped in data structures and algorithm course or maybe DBMS. But should you also mention that you topped in a course like technical report writing or any other humanities course for that matter? My answer is strictly no. Never put humanities course grades in your resume because those are not relevant. Try to keep your resume most concise and most relevant to the job that you're applying for. What can you do if you don't have material to add in your resume? What you can do is you can apply for internships. You can apply for college clubs and departments to gather as much material as you can to put down on your resume. So keep applying, and once you got it, you can add that information in your resume as well. On the other hand of the spectrum, we have people who have lots of projects to write. They have lots of material that they can pen down in their resume. Now, these are primarily working professionals who have been working in this industry for 2 to 3 years or maybe more, right? These years, they have done multiple projects and hence they can pen it down in their resume. Now, even if you have hundreds or maybe thousands of projects, do not exceed the limit of one page. You must restrict yourself to a single page resume. Now, choose a layout where you get maximum space for a project or maybe adding work experience.
My resume basically falls in the second category where I have a lot of projects and work to showcase, but I have to keep it concise just so that it can fit in a single page. And this is going to be the major talking point of this video. Second point is layout. Now, when I talk about the layout, I'm going to give you information that is more suited for working professionals. Now, having said that, if you have enough talking points on your resume, feel free to incorporate the same strategy in your resume as well. I typically go for two-column layout where the left column occupies 30% of the space and the right side of it occupies 70% of the space. What do I keep on the left side? I typically include my skills, education, awards and recognition, and maybe my social profile links. It is important to note here that these four sections, the ordering of these four sections is not fixed, meaning you can change it as per your needs. In fact, it is better to change it according to your profile. For example, if you are from a tier 1 college and have good grades, it makes sense to keep the education in the first section. In education, refrain from adding 10th and 12th standard marks since they are not relevant. I keep my skills at the top because they outshine my college degree. I'm not a CS engineer by degree. I'm an electrical engineer, electrical and electronics engineer. Hence, I try to keep my skills at the top and education at the bottom. And if you notice, I've also created subsections in my skills that makes my resume much more readable. You can also club similar skills together and then write down the skills. Keep the award section and the social profile section links in the last two sections. So it can be either skill or education at the top. These will be the first two contenders when it comes to the left column, and the last two contenders will be awards and recognition and social profile. Should you add hobbies and stuff like that? My answer would be no, it is not required. On the right side of the things, we keep the employment history along with the projects that we have undertaken. Third point, which is employment history. This is where you must spend most of your time. Start with the most recent one and then continue in the descending order. Each employment must have two things. One is the company name and the duration for which you have worked in that particular company. Now, there are two optional parameters that you can write, and I'm giving my personal opinion on this. People do write it, some people don't write it, right? The two optional parameters are, first is location. Now, this will help filter you out if the company is only looking for candidates who are currently based in a particular location. So, for example, if I am working in Bangalore and there is a XYZ company who's looking for candidates, but they don't want to spend on relocation, or maybe they have some other location constraint, and for that reason they are only looking for people who are currently in Bangalore. It will help them filter you out if you don't match the location preferences. I typically write location in my resume since I don't want to spend my time in interviewing with the companies that have such location constraints. The second one is designation. Now, your designation might aid or forbid you in getting a good role or a designation in the company that you are applying. Let me explain this with an example. Assume that you are a 4-year experienced candidate who is at SD3 level in Amazon. And if this person writes his designation, it will have a positive impact. Whereas a person with 8 years of experience working as an SD2 in Amazon will have a slightly negative impact while negotiating a good role or salary in his new company. These are my personal opinion. So please take it as a personal opinion only. Negotiating a good role and salary is a different beast in itself. I will do a separate video on that soon. So I'll just omit that section for this video since it's a different talking point. Then comes the part where you need to mention the cool work that you have done in the particular job. If you have done multiple projects, add only the projects that have made significant impact. How do you measure significant impact? To measure that, I'll give you few driving factors. Depending upon the nature, it can be engagement, that
Has your contribution resulted in consumers using your product more than before? Earlier, people were, let's say, spending 2 minutes a day on your application. Now that has increased to 5 minutes. That's a significant jump. Second is revenue. If your product has helped the company achieve its revenue goal or increased the revenue that it was generating earlier, that's a good and significant impact again. Customer acquisition. Earlier, your number of users who were using your product was, let's say, 100K, and now with your contribution, it has increased to, let's say, 1 million. That's a significant contribution again. And then comes the dev metrics as well. If you are applying for, let's say, a developer productivity role, DevOps, or maybe site reliability engineer, or maybe some dev aligned team, then dev metrics makes much more sense. What are those dev metrics? Reducing the latency of your system, reduce the infrastructure cost by a significant amount, increase the developer productivity by introducing new tools for deployment or delivery, or you have significantly increased the productivity of developer by any other way. For example, at Facebook, if you have developed Cassandra, that's a great. You have not only increased the productivity of developers within Facebook, but outside of the Facebook world as well. So if you have developed such kind of a system, definitely mention that in your resume. Now, always start the line with the action verb, justifying what contribution that you have made in the project. Also highlight your key accomplishment as a part of your job. And it is a good idea to mention the tech stack of a particular that you've used in a particular company. That will help the interviewer gauge information about the latest tech stack that you have worked on. Having said all this, should we always select the projects that have made the most significant impact? My answer is no, you should not. Select the project that is most relevant to the job you are applying. If you are applying for a data science or a data platform engineer kind of a role, in that case, it makes sense to include projects related to data platform rather than I developed so-and-so API which scaled to XYZ TPS. That does not make sense, right? So keep the project information very relevant to the position and the role and the type of company you are applying for. My fourth point is some shady ways that you should keep yourself away with. Now, many companies use softwares to read and filter candidates based on internal algorithms. They are AI-driven algorithms. To bypass them, what people generally do is that they add all skills and jargons that they even know or heard of while making a resume, and they write those jargons in a white ink, meaning that it will not be visible by a naked eye, but if there is a software which is reading what text is written in this particular document, they'll be able to get hold of that particular jargon and thereby bypassing the AI filter criteria, and then it will go to the hiring committee or maybe the recruiter for review. I would not suggest someone to try this though. Try the best way to upskill yourself and get your resume noticed is to keep learning in the area that you want to apply. If you're interested in applying for data science, try and learn data science and then put it down with a black ink. Getting your resume shortlisted by AI is one thing. Clearing the rounds and then excelling at your job is even more important. Hence, do not go for such shady hacks. My last point is around how do you increase your chances of being shortlisted. The best thing that works and is a clear winner if I compare all the other strategies is getting yourself referred. Try to get hold of a person who's currently working in that company and go for an employee referral, because that is when you will have maximum chances of getting an interview call. The second thing that you can do, if let's suppose you don't know anyone in the company who's going to refer you, is to write a personalized cover letter to the HR, mailing the HR or mailing at the careers page. Always make the cover letter personalized to the position and the company and the team you are applying at. Even if you are applying at Google, your cover letter will change depending upon which team you are applying in. I wrote a different cover letter for Amazon Prime Video team in London and a different cover letter for Amazon
payments team in Bangalore. Both of them have different work and hence a different cover letter. If you have time, do make a different resume for each of the profile as well. That was all for this video. I hope you like the content. We'll be doing similar content in coming days. Hence, it is important for you to please go and subscribe to our channel so that you get notified about upcoming content in similar domain. Also, please like, share, comment on this video. Are you someone who often struggles to pen down your key points in your resume? Do you often find it difficult to stand out from the crowd? Well, if you are a software engineer and facing these problems, this video is definitely for you. The first barrier between you and your dream job is your resume. And the number one mistake that most people do is they make a generic resume for every company. I would strongly recommend you to make your resume as your personal project. After all, jo dikhta hai, wahi bikta hai boss. I'm Mohit Yadav and I teach in Scalar Academy. Having played a pivotal role in building teams in Hotstar and Nutanix, I want to share my knowledge and highlight the top 5 things that you should keep in mind while building your resume. First, stand out not aesthetically but by adding a wow factor in terms of your accomplishments. Don't use a very different design or a graphic heavy resume. Some companies uses softwares to read your resume and they rely on these softwares to capture the key information like your skills, education, employment history, etc. Adding graphics will not only lead to space wastage but will also grab the attention over your design skills, whereas the attention should be given to your skill set that you have mentioned in your resume. Avoid using colors because most of the times interviewer get a copy of your resume in form of a printout. The second point, which is very important, is to choose a layout which works good for your resume. 1 column layout leads to space wastage and 3 column layout is kind of very crowded. So always stick to a 2 column layout. 1 column could be a narrow column to showcase your skills, education, maybe other links, and the broader one can be used to brag about your cool projects that you have done. And feel free to add 1 row on the top to highlight your name and contact information. I'm giving you a suggested list of layouts that you can use for your resume. Let's first discuss the left column and see each point one by one. The first thing that I want to discuss is about education, and the things that comes under the education umbrella are your 12th and 10th standard marks, your bachelor's degree, master's and online certifications if you have done any. But should you put everything? My answer is no. 10th and 12th class marks are irrelevant. Add education in the most recent first order. So master's, then bachelor's and then online certifications. And if your bachelor's is not from a tier 1 college and you have done master's as well, try to avoid adding this information about your bachelor's degree altogether. Same is with the online courses as well. If you don't have anything else to put in your resume or if you don't have relevant work experience, only then add information about the online certifications. One common question that is basically asked to me is, should we or should we not include our GPA? My suggestion is, avoid using it in your resume unless it is very good. Next point is about skills, which is also the most abused part of the resume. People write each and every technology that they have even heard about. A rule of thumb over here is include only those skills in which you can write a small project without having to Google it for the syntax or everything. For example, I can write few scripts in Python, but I tend to omit this in the resume because I'm not very proficient at it. Try to keep this section very minimal and relevant. For example, I know Photoshop, but if I'm applying for a backend role, this skill is irrelevant. Similarly, I might be a good singer, but I should definitely omit this as well because this skill is also very irrelevant. Add only those skills where you consider yourself as at a intermediate or an advanced level. I'll give you an example on this. I learned PHP in college and built few websites using the same language. But after a decade of programming, I don't remember anything in PHP.
Hence, it is best to remove such skills from your resume. Another important point is to avoid listing down comparable skills if you don't know the differences. For example, listing down Postgres, Oracle, and MySQL without knowing the difference between each of them is just pointless. Similarly, listing down various versions, for example Java 8 and Java 11, if you don't know the differences, is also pointless. The last section on your left side is links. Typically, social profiles are added in this session. For example, your GitHub profile, your Stack Overflow profile, or even your Scalar profile. Instead of writing the complete URL, just write the username against the logo of that particular company. So for example, GitHub / your username, Stack Overflow / your username, Scalar / your username, and try to make these username across social platform consistent and professional. Avoid hyperlinks because that won't be printed out when somebody takes a printout of your page. Coming to my fourth point, and also the right section of your resume, which is around your work experiences and the project that you have done. This is basically the major space of your resume, and hence it should be impact and outcome driven. Pay attention to the action verbs that you use to describe your work. For example, you can use automated, saved, designed, developed, achieved, or maybe refactored to describe your work. A common mistake that most people do is that they use company specific verbs or abbreviations instead of using a generic term. For example, a friend of mine working in Amazon wrote this line: increase developer productivity by adding automated triggers in Brazil tool. Now, if you're not from Amazon, people would not know what Brazil tool is used for. Instead, what he could have written is increase developer productivity by adding automated trigger in the build tool. So just by replacing Brazil with build makes it more user friendly and reader friendly. A typical layout that you can use is to have a 2x2 table to describe the role at a particular company. First row for company name and job title, and second row for duration and location. This layout will help you keep your resume concise and to the point. Below this, you can add the list of projects that you handled as a part of your job. Now, what you should add in the project? You should add what the project was about, what was the duration of the project, and what you exactly did in that particular project. Also have one line explaining what was the impact of doing this project. This could be led to more customer conversion, the scale was maybe 1 million concurrent users, and so on. The other things that you should typically add is a tech stack that was used for this particular project. By now, we have seen 4 points that describe what are the things that should be included in the resume. The last point I have reserved for a very special topic, which is the things that you should not write in your resume. The topmost point is around objective. I see many resumes writing this objective: I am a software developer who wants to do this. This is just blatant wastage of space in my opinion. If you are applying for a job, it is implicit that you have read the job description and are willing to do whatever was written in the job description. Hence, do not write your objective in the resume. This is something that you can have a one-on-one conversation with your interviewer. The second point is references. You should typically not write references of your previous managers or anybody for that matter unless you are asked to provide so. Next point is summary. Do not write summary of your resume, right? Your resume in itself is a summary of the work that you have done. Similarly, address, hobbies, interest, these are typical things that you should never write in your resume. And lastly, do not write weaknesses and strength in your resume. Your resume should be a reflection of your strengths, not your weaknesses. That's it for this video. If you want us to review your resume, please send it to the link given in the description below. We'll start with a resume roast session very soon, where we'll pick resumes sent to us and we'll suggest live improvements. Keep learning, keep smiling. Bye-bye. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन. ये सेशन हम हिंदी में बोलने वाले हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मल रखेंगे सेशन को. सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रिज्यूमे बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है. हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे, कुछ रिज्यूमेज जो हमें हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे थे, जिस पे हम चर्चा करेंगे कि इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. तो
हमने आई थिंक लास्ट वीक एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें बताया था कि रिज्यूमे में क्या-क्या चीज़ें डालनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। हम उस पे भी बात करेंगे और मैं कुछ टेम्पलेट्स भी बताऊँगा रिज्यूमे के जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं अपने रिज्यूमे बनाने के लिए। तो आई थिंक सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ से ही शुरू करते हैं कि रिज्यूमे का एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, राइट? किसी को अगर कुछ कमेंट हो, कुछ पूछना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकता है। मैं कमेंट बॉक्स से चीज़ें पढ़ता रहूँगा और उनको आंसर करता रहूँगा, राइट? तो रिज्यूमे को पहली बात लोग बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि रिज्यूमे जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करना है तभी वो बनाना शुरू करते हैं। ये एक खराब आदत है मेरे मायने में। अगर आपको किसी कंपनी से चाहिए कि वो आपको आके बोले और शॉर्टलिस्ट करे, उस कंपनी के लिए स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं एंड्रॉयड स्पेसिफिक स्किल सेट ज़्यादा मेंशन करूँगा, प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड के ऊपर लिखूँगा। ऐसे ही अगर मैं वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं बैक एंड के प्रोजेक्ट्स लिखूँगा। अगर मैं डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं डिज़ाइनिंग टाइप के चीज़ें लिखूँगा, राइट? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिस टाइप की कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, राइट? उस टाइप के स्किल सेट आपको मेंशन करनी चाहिए। जो स्किल उस कंपनी के लिए लागू नहीं होते, वो चीज़ें हटा दो अपने रिज्यूमे से। वो चीज़ें रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, राइट? तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे को फ़ोटोशॉप भी आता है, बट मैं फ़ोटोशॉप वाली स्किल जो है वो नहीं लिखूँगा टिपिकली अपने रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि फ़ोटोशॉप एक बैकएंड इंजीनियर के लिए ज़रूरी नहीं है, राइट? वो मेरा एक पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी गई है, तो जो कि मैंने सीखी है, बट उसका प्रोफेशनल ज़िंदगी में मेरा कोई लाभ नहीं आने वाला है। तो जो चीज़ें मेरे को प्रोफेशनली जॉब में चाहिए होगी, सिर्फ वही चीज़ें मैं ऐड करूँगा। शुरुआत करते हैं ये चीज़ देख के कि अप्लाई कर एक टिपिकल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो अपने रिज्यूमे का। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी मतलब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, रिज्यूमे इज़ योर पर्सनल प्रोजेक्ट, राइट? एंड दैट प्रोजेक्ट शुड एक्चुअली शाइन आउट, क्योंकि वही आपको जॉब दिलाने वाला है, राइट? तो कैसे बनाते हैं रिज्यूमे, राइट? कोई बताना चाहेगा जो कि यहाँ पे है कि मतलब अगर आपको रिज्यूमे बनाना है तो आप क्या-क्या सोचते हो उसको बनाने के लिए? चलो मैं भी बताता हूँ। मैं अपना स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि जो मैं लिखूँ वो सब लोगों को दिखता रहे, है ना? ठीक है। तो रिज्यूमे जब भी आप बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, तो पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है कि रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए, राइट? अगर आप सिस्टम डिज़ाइन की भी बात करो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखते हो और फिर बाद में मे बी आर्किटेक्चर सोचते हो, फिर बाद में एक रिपॉजिटरी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम वगैरह रहता है, राइट? तो आपको रिज्यूमे के लिए भी सबसे पहले स्टार्ट करोगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ। रिक्वायरमेंट्स कैसे मैच करोगे कि मान लो मैं गूगल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? गूगल का बैकएंड रोल है या फिर एमएल रोल है। मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, की स्किल्स लिखी हुई है, वो मुझे आती है या नहीं आती है। अगर मुझे वो आती है, तो मैं वो चीज़ें उस डायरेक्शन में अपना रिज्यूमे मोल्ड करूँगा। फिर आता है कि आर्किटेक्चर, यानी कि आप टूल्स कौन से यूज़ करोगे रिज्यूमे बनाने के लिए। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग रिज्यूमे बनाने के लिए गूगल डॉक यूज़ करते हैं, कुछ लोग शीट्स यूज़ करते हैं, कोई लोग पावर पॉइंट में बनाते हैं। बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप एक लेटेक्स करके फ्रेमवर्क है, उसको ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है? लेटेक्स क्या होता है? प्रोनंसिएशन उसकी लेटेक होती है, तो मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ। तो हमें सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी मतलब इस पे रिज्यूमे बनाने हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रिज्यूमे के टेम्पलेट मिल जाएंगे आपको। मैं आपके साथ एक रिज्यूमे टेम्पलेट भी शेयर करूँगा जो कि आप जाके देख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो, राइट? यहाँ पे रिज्यूमे बनाएंगे तो आपका रिज्यूमे मतलब स्पेसिंग वगैरह इन सब चीज़ों का अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान में रखता है ये। इसके बाद आपको एक रिपॉजिटरी चाहिए होती है जहाँ पे आप अपने रिज्यूमे लिखते रहें। तो रिपॉजिटरी कैसे मॉडल करेंगे हम लोग? रिपॉजिटरी मॉडल करने के लिए हमें रिपॉजिटरी में बेसिकली चीज़ें क्या क्या आएगी, पहले इसके बारे में बात करें। तो रिपॉजिटरी में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो है कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए, तो ये स्पेशली जो लोग कॉलेज में है, राइट, और जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको एक गिटहब रिपॉजिटरी बनाओ, प्राइवेट कर लो उसको, और एक जो होम जो फर्स्ट पेज है readme.mp जिसे कहते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग उसको वहाँ पे एक डॉक टाइप बना लो। डॉक के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स लिखते रहो, क्या क्या उसके अंदर चैलेंजेस है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, टेक स्टैक क्या यूज़ किया, इन सब टाइप की चीज़ें आप जाके वहाँ पे लिख दो,
इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, तो आपको रिफ्रेश करना है अगर आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया अपनी पूरी लाइफ में, तो आप यहाँ से उठा के डाल सकते हो। इस डॉक के अंदर जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकते हो आप उतना डिस्क्रिप्टिव होइए, क्योंकि यही डॉक का वर्जन, मतलब इसमें इसी डॉक में से आप कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के अपने जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे डालोगे। तो ये एक मतलब ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको आगे रिज्यूमे बनाने के लिए और इवन इंटरव्यूज देने के लिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए, उसके अंदर एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते जाइए। जैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि आप कंपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दूसरा तरीका अगर आपको बनाना है तो आप बोल सकते हो कि बैक एंड प्रोफाइल के लिए मेरे रिज्यूमे इस फोल्डर के अंदर रहेंगे, फ्रंट एंड के लिए इस फोल्डर में, फुल स्टैक के लिए इस फोल्डर में, और मे बी अगर आप एनालिटिक्स में जाते हो तो आप उस फोल्डर के लिए वो भी एक फोल्डर बना सकते हो। तो आपको रेफर करना आगे के लिए ईजी रहेगा कि ये जो बैक एंड रोल है, बैक एंड रोल वाले के लिए वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 वगैरह आप ये डाल सकते हो, नाम मतलब उसको डेट वगैरह के अनुसार मॉडल कर सकते हो। और वहाँ से उठा के आपको जब भी अप्लाई करना है तो आपको बस अपने गिटहब पे जाना है, गिटहब पे जाके रिज्यूमे उठाना है और अप्लाई करना है। तो एंड में ऐसा नहीं होगा कि आपको, मान लो आप आज जॉब स्विच करने की सोच रहे हो या आपको अभी अप्लाई करना है 1 महीने के अंदर, या फिर आपको अगले हफ्ते अप्लाई करना है, तो HR बोलता है कि मेरे को रिज्यूमे ला के दो, और आप तब बनाने बैठते हो। उस टाइम पे क्या होता है, जल्दबाजी में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। अगर आप ये ऑनगोइंग प्रोसेस रखोगे कि हाँ मेरे पास एक जगह है जहाँ पे मैं जाके अपने सारे प्रोजेक्ट्स देख सकता हूँ, या फिर जहाँ पे मेरे सारे रिज्यूमे हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्विकली अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टेम्पलेट्स की। ठीक है, कि टेम्पलेट्स कैसे होने चाहिए रिज्यूमे के, और टेम्पलेट्स कुछ इस प्रकार के रहने चाहिए। ठीक है, मेरे को जो सबसे बेहतर लगता है वो ये रहता है कि आपका ट्राई करो सारा कुछ आ जाए 1 पेज के अंदर। 1 पेज से ज़्यादा रिज्यूमे नहीं होना चाहिए आइडियली। रिज्यूमे अगर 1 पेज से ज़्यादा बन रहा है तो आप उसमें नॉन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ लिखने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मे बी 15 साल पहले किया था वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट अब है नहीं, राइट। मैंने 10 साल पहले PHP में कोड किया था, बट आज की डेट में मैं बोलूँ तो PHP में मेरा कोई मतलब याद भी नहीं है मेरे को सिंटैक्स कैसा होता है, राइट। तो सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें रखना रिज्यूमे में वो बहुत बड़ी आर्ट है, और वही चीज़ें हमें रखनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट 1 पेज, अगर मेरे को सारा चीज़ें 1 पेज में डालनी है तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि अपना रिज्यूमे कुछ इस तरीके का बना सकता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स कैसा बना सकते हैं, और फिर मैं बात करूँगा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसा कर सकते हैं। तो कॉलेज में कई बार क्या होता है कि काफ़ी बार तो ये होता है कि यूनिवर्सिटी वगैरह ने बहुत ज़्यादा डाल के रखा होता है कि यही फॉर्मेट फॉलो करना है और आप कोई दूसरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है तो प्लीज़ फॉर्मेट को फॉलो करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हो कंपनी में, तो जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर रखे होते हैं उनके पास, PDF जैसा अगर आपने सबमिट किया तो वो PDF रीडर वाले सॉफ्टवेयर होंगे, वही आइडेंटिफाई करेंगे आपके मेन सेक्शंस क्या है। तो एक्सपीरियंस वाला जैसे होता है वो ऑटो फिल होकर डाला जाता है। स्किल्स, टेक स्टैक वगैरह जहाँ पे आपने लिखा है तो वो भी ऑटोमेटिकली पिकअप करेंगे और फिर बाद में वहाँ पे रखा जाएगा। तो इसलिए इमेज टाइप के रिज्यूमे बनाना का थोड़ा मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा मैं लोगों को, और ग्राफिक हैवी रिज्यूमे मत बनाना, क्योंकि ग्राफिक हैवी रिज्यूमे से थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके पास, जैसे स्पेसिफिकली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके रेलेवेंट स्किल सेट नहीं है। आपका मेन कोर स्किल सेट मतलब मे बी C++, जावा या फिर पाइथन या इस टाइप की कोई स्किल सेट होना चाहिए, ना कि देखो मेरे को मैं कितना अच्छा डिज़ाइनर हूँ, अनलेस आप UI डिज़ाइनर या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर। तो बैक एंड रोल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा ग्राफिक हैवी रिज्यूमे अवॉइड करना। कलर वगैरह मत यूज़ करना अपने रिज्यूमे में, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कंपनीज में, जैसे मैं इंटरव्यू लेने कभी कभी जाता हूँ तो मेरे को PDF वगैरह नहीं फॉरवर्ड करी जाती। मेरे को HR क्या करता है, एक प्रिंट आउट निकाल के दे देगा कैंडिडेट का और बोलेगा कि ये लो। तो अगर किसी ने कलर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ किए होते हैं तो कई बार वो ग्रे स्केल में इतना सुंदर दिखता नहीं है। तो कई बार कुछ चीज़ें हट जाती है, तो फिर वो आई कैची इतना जितना कलर में लग रहा होता है उतना ग्रे स्केल में लगता नहीं। तो कलर अगर आपको यूज़ करने भी है, मैं कहूँगा कि उसको पहले ग्रे स्केल में एक बार कन्वर्ट करके देखो कि कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, बट इन जनरल अवॉइड करना है। ठीक है, चलो बहुत देर से बोल रहा हूँ कि लेआउट्स देखते हैं, बट अब आ ही जाते हैं लेआउट, है ना। तो लेआउट में पहली रो जो है, राइट, ये जो हाईलाइट किया है मैंने, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना नाम, है ना। तो यहाँ पे योर
नेम कैन कम, ये आपकी रिज्यूमे का सबसे बड़ा पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि किसी बंदे को आपके रिज्यूमे में जो चीज़ एंड में याद रहनी चाहिए वो है आपका नाम, क्योंकि अगर वो आपका नाम भूल गया रिज्यूमे देखने के बाद तो फिर मतलब पॉइंट नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल सेट हो गए बट अगर नाम ही याद नहीं है तो फिर वो कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे, राइट। नाम के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका कॉन्टैक्ट कैसे। रिज्यूमे अच्छा लगा, पढ़ के अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा, अब आपको आपसे बात करनी है तो वो करे कैसे। तो उसके लिए यहाँ पे आप अपना ईमेल दे सकते हो और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, ठीक है। एड्रेस देना चाहिए, आपको लगता है एड्रेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा कहना नहीं देना चाहिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ रहते हो उसका मैं क्या करूँ, राइट। आप सेक्टर 12 में रहते हो या कहाँ गुजरात में रहते हो, कहीं भी रहते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ईमेल और फ़ोन नंबर सही है। मेरे को अभी जब अगर आपका रिज्यूमे अच्छा लगेगा तो मैं आपको कॉल या फिर ईमेल करूँ। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी कॉलेजेस में मैंने देखा है, काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ये फॉलो करती है, मेरे को मतलब फॉर एंड अगेंस्ट दोनों हैं इसके पीछे। वो ये है कि यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हो। अब अगर आप फ़ोटो डाल रहे हो तो याद रखना कि प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए। ये टिंडर नहीं है, ना ही ये फेसबुक है, ना ही ये मतलब इंस्टाग्राम है। लिंक्डइन टाइप की फ़ोटो जो आप डालते हो उस टाइप की आप फ़ोटो डाल सकते हो, राइट। नीड नॉट बी कि हाँ एकदम प्रोफेशनल शूट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पिज़्ज़ा खाते हुए फ़ोटो डाल रहे हो और उस टाइप की मतलब सुशी खा रहे हो या फिर वो फ़ोटो डाल रहे हो। ट्राई टू लुक प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल, राइट। उस टाइप की आप फ़ोटो डाल दीजिए। फॉर बेसिकली इसमें ये है कि काफ़ी बार ये होता है कि लोगों को ना स्पेशली कैंपस में जब मैं हायरिंग करने जाता था तो कई बार मेरा ऐसा होता था कि स्पेशली अगर ग्रुप डिस्कशन ले रहा हूँ मैं या फिर इस टाइप का राउंड है जहाँ पे मेरे को जहाँ पे मैंने काफ़ी एक ग्रुप में काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया। अब वहाँ 5-6 चेहरे मेरे को याद है, अब पर नाम याद नहीं है कौन कौन से थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रिज्यूमे में देख सकता हूँ कि हाँ यार ये चेहरा था, ये चेहरा था। अगर मेरे को चेहरा से याद आ गया तो मैं रिज्यूमे वाला निकाल के देख सकता हूँ। तो इसलिए काफ़ी बार यूनिवर्सिटी वगैरह में ये सेंस बनाता है। वर्किंग प्रोफेशनल के जब हम लेआउट पे आएंगे तो देखेंगे कि यार ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करो, अपने जो लेआउट है उसको तोड़ लो 2 कॉलम में, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्पेस यूटिलाइजेशन रहेगा। अगर आप मान लो एक कॉलम का लेआउट लेते तो यहाँ पे आपको एजुकेशन डालनी होती, एजुकेशन में मतलब सिर्फ इतना लाइन आती, ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला जो एरिया है, ये वेस्ट हो जाता है ना। तो इसलिए 1 कॉलम लेआउट नहीं करना चाहिए। 3 कॉलम भी काफ़ी मैंने देखा है कि भाई लोग 3 कॉलम भी यूज़ करते हैं, पर वो भी मत करो। क्योंकि 3 कॉलम में क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट लिखने जाओगे ना, या तो आपके प्रोजेक्ट में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप 3 कॉलम में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने डिसेंट सा प्रोजेक्ट किया है तो 3 कॉलम लेआउट में अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में लिखोगे तो बहुत छोटा सा स्पेस बचता है। क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको इम्पैक्ट भी दिखाना है क्या किया, आपको समझाना भी है कि प्रोजेक्ट था क्या, आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में वो भी बताना है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से कॉलम में आ नहीं पाती। ये वाला सही लगता है कि यहाँ पे आपने अगर आप 2 कॉलम लेआउट की बात कर रहे हो तो ये सही है। यहाँ पे आप एजुकेशन डाल दो, है ना, फिर अपनी स्किल्स डाल दो और कुछ लिंक्स वगैरह है तो वो डाल दो। लिंक्स में क्या आएगा कि आपकी गिटहब प्रोफाइल, आपका टॉप कोडर वगैरह पे अगर आप कोड करते हो, कोड शेफ में है, बेसिकली लिंक्डइन, गिटहब, इस टाइप की कुछ भी प्रोफाइल अगर आपको डालनी है, सोशल नेटवर्किंग वाली, फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल मत डालना, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब मत डालो। प्रोफेशनल प्रोफाइल्स आपकी जहाँ पे भी है वो सब डाल सकते हो। तो अब इसके ऑर्डर की बात करूँ मैं तो ऑर्डर में ऐसा रहता है कि जो आपकी बेस्ट सेलिंग चीज़ है, राइट, वो सबसे ऊपर डालो। अगर आपको लगता है कि आपकी टॉप कोडर की रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 है आपकी टॉप कोडर, या फिर आपने एसीएम आईसीबीसी कोड दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिससे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रिज्यूमे में देख के, वो डालो। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन में मैंने बहुत मचाया है, कैड्स में मेरे 9 पॉइंटर के ऊपर है, तो फिर एजुकेशन ऊपर डालो। स्किल्स अगर बहुत अच्छी है आपकी कि भाई मेरे को तो फ्लटर भी आता है, मुझे एंड्रॉयड भी आता है, मेरे को रिएक्ट भी आता है, सब कुछ आता है मेरे को, तो स्किल्स ऊपर कर दो, राइट। बट टिपिकली स्किल्स वाले सेक्शन में जब मैं जाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि स्किल्स में क्या क्या चीज़ें मेरे ध्यान में रखनी पड़ती है। बट स्किल्स अगर आपको लगता है कि आपकी टॉप नॉच है तो स्किल्स ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे जो डाल सकते हैं वो है अवार्ड्स वगैरह, अवार्ड्स या फिर रिकॉग्निशन वगैरह कुछ मिला हो। इसके रिकॉग्निशन वगैरह में किसी बंदे का नाम मत डालो। टिपिकली रिकॉग्निशन ऐसा हो जाएगा कि आपने कोई पेपर पब्लिश किया, वो सॉरी IEEE कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया, इस टाइप की एक्सपेक्टेशन डालना। या फिर अगर आप कॉलेज के अंदर स्पेशली थीसिस कहीं प्रेजेंट करने गए तो फिर वो कहीं एक्सेप्ट हो गई, उनकी डिटेल्स डाल सकते हो यहाँ
ठीक है। अब आते हैं राइट पार्ट की बात, ठीक है। बाय द वे अवार्ड्स वगैरह अगर आपका है ना ऐसा कि आपको एक्सप्लेन भी करना है, स्पेशली अगर वो थीसिस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो आप अवार्ड्स को इस सेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अवार्ड्स में आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़े कि किया क्या था, क्यों मिला, इस टाइप की चीज़, तो आप इस सेक्शन में भी मूव कर सकते हो। अगर लिखने का कुछ नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मैं मेरे को टॉप 1% हैकर रैंक टेस्ट में आए थे, तो सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो बंदा पढ़ रहा है उसको समझ आ जाएगा कि हाँ आप किसकी बात कर रहे हो। पर अगर आपको समझाने की जरूरत है तो फिर शायद आपको लिखना पड़ेगा, तब आप उसको राइट कॉलम में, ठीक है। राइट कॉलम में क्या लिखना चाहिए? राइट कॉलम में टिपिकली लिखे जाते हैं, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, मैं थोड़ा कलर पेन का दाग ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की है ना। इंटर्नशिप नहीं की तो फिर आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किए होंगे। अगर बाय द वे गाइस, अगर आप कॉलेज में हैं और अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किए तो प्लीज़ करने लग जाओ। कुछ भी प्रोजेक्ट करो, बट प्रोजेक्ट ज़रूर करने चाहिए। आपने एकेड्स को छोड़ के, आजकल क्या है, बहुत कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन को कट करने के लिए आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट कितना इम्पैक्टफुल है वो डिफाइन करेगा कि आपका रिज्यूमे कितना स्टैंड आउट करता है ना। कई बार क्या देखता हूँ मैंने काफ़ी लोग लिख देते हैं कि मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, पर उसका क्या करूँ मैं, मतलब बनाया क्या किया उसके अंदर, वो सब डिटेल्स लिखो, क्यों बनाया। हमेशा अपने प्रोजेक्ट का ना क्यों पता होना चाहिए। क्या पता पहले लिखो क्यों, अगर आप क्यों का आंसर दे सकते हो तो फिर बताओ कैसे और क्या। तो स्नेक एंड लेडर गेम में जैसे केशव इज सेइंग कि उसने स्नेक एंड लेडर गेम बनाया, बिल्कुल बोलो यार, बिल्कुल बोलने वाली बात है, मैंने बनाया स्नेक एंड लेडर गेम बनाया, उसके अंदर लिखो, लेके क्या था, क्या क्या टेक स्टैक यूज किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, इम्पैक्ट, मतलब अगर आपने वो रिलीज किया है कहीं पे तो वो उसका लिंक डाल दो वेबसाइट का कि देखो यार यहाँ पे गिटहब पे लिंक है उसका, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने वो डिप्लॉय कर रखा है कहीं, कोई वेबसाइट बनाई है उसकी, तो वेबसाइट का लिंक डाल दो, ताकि उससे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे डाल नहीं रहे हो, एटलीस्ट गिटहब पे ही अपना कोड पब्लिक कर दो, ताकि कोई ना कोई बंदा जाके देख तो पाए कि हाँ यार आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप डालोगे, प्रोजेक्ट वगैरह डालोगे, और बाद में थीसिस वगैरह अगर आपने की है तो वो डाल दो, या फिर अपना कोई बहुत प्राउड टाइप का मोमेंट। टिपिकली प्राउड मोमेंट पे ये सब मत डालना कि मेरे 12वीं में इतने नंबर आए थे, मैंने आईआईटी में इतनी रैंक लाई थी, उसका कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। वो अब तक इरेलीवेंट हो गई है। अगर आप 4 साल बाद भी ये बोल रहे हो कि मेरे 12th में 95% मार्क्स आए थे या 90% आए थे, जितने भी आए थे, वो इरेलीवेंट है। चाहे आपके 50% आए हो, चाहे आपके 90% आए हो, आप एक कॉलेज में पहुंचे हैं तो मतलब आप सेम कैपेबिलिटी है, तो वो सब डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह डाल सकते हो। एक एक टॉपिक पे भी ड्रिल डाउन करते हैं। बस मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बता दूं कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो रहता है लेआउट के लिए, ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स ये था स्टूडेंट्स के लिए, अब देखते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स। बाय द वे गाइस, मैं क्वेश्चन लूंगा, मेरे को बस लेआउट कंप्लीट करने दो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, और मैं रिज्यूमे भी दिखाऊंगा कि लोगों ने कैसे कैसे बना रखे। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर है ना। यहाँ पे अपना डालो वैसे नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो मत डालना। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इतना ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है, अनलेस आप किसी हायरिंग ड्राइव के लिए जा रहे हो। अगर आपका 1-on-1 इंटरव्यू है तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कोई ना कोई जॉब मैनेजमेंट पोर्टल रहता है कंपनीज के अंदर, जिसके अंदर जिसकी वजह से आप बेसिकली देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये बंदा है, इसने ये इंटरव्यू दिया, ये क्वेश्चन पूछने का, सब चीज़ें ट्रैक रहती है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो वो उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना नाम और ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला कॉलम सेम रहेगा। एजुकेशन, स्किल्स एंड लिंक्स एंड अवार्ड्स, ये तीन चार चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई थी, सेम चीजें इधर भी आएगी, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। अब आप क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो मैं चाहूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी 5 साल एक्सपीरियंस बंदे को हायर करने के लिए देख रहा हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी स्किल्स क्या है, वो मेरे जेडी से मैच कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि क्या है ना, कॉलेज से जो बंदा आता है उसको समझाना और सिखाना ईजी होता है। 5 साल से अगर कोई बंदा क्यूए में काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसको ट्रांजिशन कराना किसी दूसरी चीज में वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन प्रोडक्ट कंपनी, मतलब ये डिफर करता है हर कंपनी टू कंपनी, बट ये मैं अपना जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएल के लिए हायर कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आपका स्किल वाला सेक्शन जो है एक बार फटाफट दिख जाए। अगर मैच कर रहा है तो वो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहेगा एज ए रिक्रूटर।
फ्रॉम मतलब अगर मैं बंदे के पर्सपेक्टिव से बोलूँ जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी सही है, क्योंकि उसको भी पता है कि यार मेरी स्किल्स जो है वो सबसे पहले शाइन करनी चाहिए। मैंने 5-6 साल अगर इंडस्ट्री में बिता लिया, अगर मैंने 5-6 साल भी छोड़ो 2-3 साल भी बिताया, तो फिर वो दिख जाना चाहिए। दूसरी चीज़ें जो कर सकते हैं यहाँ पे, तो स्किल्स मैंने सबसे पहले ऊपर डाल दी, ठीक है। स्किल्स के बाद मेरे अवार्ड्स वगैरह, क्योंकि मैं काम वाम कर रहा हूँ तो फिर मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने अपनी कंपनी के अंदर भी ग्रो किया है। तो अगर आप प्रमोट हुए हो या फिर आपका अप्रेजल ऐसा हुआ है कि आप टॉप 1%, टॉप 10% में आते हो, ठीक है, वो वाले मेट्रिक्स काफी मैटर करते हैं एक पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि वो बताता है कि आपकी स्किल्स तो अच्छी है ही, पर आप एक अच्छे टीम प्लेयर वगैरह भी हो, जिसकी वजह से आपकी कंपनी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो जैसे अगर मैंने SD1 ज्वाइन किया अमेजोन पे और मैं SD1 से SD2 जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा वहाँ पे कि यार देखो मेरा प्रमोशन था, आई गॉट प्रमोटेड, नॉट, या फिर अगर मैं बोलूँ कि माई अप्रेजल वाज इन द अमंग द टॉप 1%, तो उस टाइप की चीज़ें मैं डाल सकता हूँ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन टाइप में। और कई बार वो भी होता है कि काफ़ी कंपनीज वो इस टाइप के रखते हैं, परफॉर्मर ऑफ द ईयर, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर, ये सब टाइप के अवार्ड्स, वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो सब आएगा बाय द वे एजुकेशन के बाद। मैं टिपिकली नहीं लिखता हूँ अवार्ड्स एंड फंक्शन, बट काफ़ी लोग लिखते हैं और वो ठीक है, मतलब आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। मेरी सेकंड चीज़ जो मेरे रिज्यूमे पे आती है वो आती है एजुकेशन। और फाइनली मैं डालता हूँ अपने लिंक्स में भी सिर्फ लिंक्डइन का लिंक डालता हूँ, मैं बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे अब एक्टिव हूँ नहीं कभी। मतलब आई थिंक जो नए स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो कॉलेज वॉलेज में है, वो ज़्यादा अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। वंस यू गो इनटू अ जॉब तब ये चीज़ें कम हो जाती है। तो क्योंकि मैं इन सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो फिर मेरी कोई रैंक भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो डाल भी नहीं रखी है। आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक लिंक्डइन का प्रोफाइल वर्ड डाल देना। और सिर्फ लिंक्डइन डालने के लिए एक पूरा सेक्शन लेना वो थोड़ा सा गलत लगता है। तो मैं टिपिकली क्या करता हूँ कि अपना लिंक्डइन का भी जो कॉन्टैक्ट है वो इधर डाल दूँ, अपने ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और एक लिंक्डइन का URL। तीसरा सेक्शन जो मेरा होता है वो होता है कि मेरे को रिकॉग्निशन वगैरह क्या क्या मिली है वो सब डाल सकते हैं, है ना, वो डाल दिया। अब आते हैं राइट साइड की बात। राइट साइड जो है वो एकदम सेम रहता है इसके, ठीक है, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रहती है, तो यहाँ पे आएगा एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा आएगा प्रोजेक्ट्स, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंडर ही रहेंगे। मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, मेरे को, मैं खुद ये फॉलो करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है कि सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया। दो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 रो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैंने कब से कब तक काम किया, क्या काम किया, क्या डिजिग्नेशन थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा हॉटस्टार, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डेजिग्नेशन सीनियर इंजीनियर लेट्स से। फिर मैंने लिख दिया कि डेट थी लेट्स से मई 2014 टू अप्रैल 2020 लेट्स से। करेक्ट नहीं है बाय द वे गाइस, जस्ट टेलिंग यू, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ये लिख दिया और यहाँ पे डाल दिया लोकेशन बैंगलोर, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक, दिस इज नथिंग बट अ 2x2 टाइप का मैट्रिक्स, और 2 रो 2 कॉलम में मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब रिज्यूमे पे डाल के देखोगे तो थोड़ा नीट भी दिखता है ना। और यही से देख के मेरे को पता चल गया कि डेजिग्नेशन क्या थी। अगर मेरे पास मल्टीपल कंपनीज है तो ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस होंगे मेरे पास, मैं सब में जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन सी कंपनी ने कौन सा कितना काम किया और लेवल ऊपर था या नहीं था। जैसे कि मान लो मैं इससे पहले किसी और कंपनी में काम करता था, वहाँ पे मैं सिर्फ एक इंजीनियर था, राइट। तो ग्रोथ भी दिखती है इसी फॉर्मेट से डायरेक्टली कि क्या क्या चीज़ें मैंने की और कितने रोल पे कहाँ से कैसे मैंने जम किया, वो सब दिख जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें लिखनी चाहिए यहाँ पे वो है एक एक करके प्रोजेक्ट मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट नेम, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट नेम के कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख देता हूँ कि ये क्या था। मेरे बुलेट पॉइंट्स जो स्टार्ट होंगे, राइट, वो हमेशा स्टार्ट होंगे एक एक्शन वर्ब से, जैसे कि डिप्लॉयड या फिर रिवैम्प्ड या फिर कोडेड या फिर डेवलप या फिर क्रिएटेड, इस टाइप के एक्शन वर्ब से स्टार्ट करो कि क्रिएटेड XYZ विच लेड टू XYZ। तो 2 चीज़ें आपको हमेशा प्रोजेक्ट में ध्यान रखनी है। पहला, जो ये पॉइंट्स लिखोगे उसमें ये स्पेसिफाई रहना चाहिए कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट था किस बारे में, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रोजेक्ट में क्या इम्पैक्ट आया और कंपनी को क्या इम्पैक्ट हुआ उससे। जितने अच्छे से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाओगे और जितने कम वर्ड्स में, उतना बेस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर
यहाँ तो एक्सप्लेनेशन होगी मान लो, एक इम्पैक्ट करके लिखेंगे आप यहाँ पे, और एक यहाँ पे टेक्स्ट स्टैक पे लिखो। अब यहाँ पे आप सोचोगे स्किल्स मैंने लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लिख रखा है, इधर टेक्स्ट स्टैक लिखने का क्या फायदा? फायदा ये है कि उनको पता चल जाता है कि आपने ये जो स्किल्स लिखी है ना, जो अगर मैं एज अ इंटरव्यूअर हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मैंने जावा, इस बंदे ने जावा भी लिखा है, पाइथन भी लिखा है, सी प्लस प्लस भी लिखा है, पीएचपी, सब कुछ, सारी जहाँ की लैंग्वेज जितनी सब लिखी है, पर एक्चुअल में उसको क्या आती है वो मैं देख सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में प्रोजेक्ट की रिसेंसी से, कि जो मोस्ट रीसेंट लिखा हुआ है इसने प्रोजेक्ट, वो मोस्टली वो रीसेंट होगा, मतलब हमेशा मोस्ट रीसेंसी वाले ऑर्डर पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। और जो मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर जो टेक्स्ट स्टैक है वो तो इसको अच्छे से आता होगा, तो अगर मेरे को टेक्स्ट स्टैक बेस्ड क्वेश्चन पूछना है तो मैं इसको पूछूंगा। इसीलिए स्किल्स वाले सेक्शन में जो मैं बोल रहा था कि स्किल्स वाले सेक्शन में कुछ ऐसा मत लिखना जो कि आपको आता ना। अब ये चीजें, तो इससे आपका बेसिकली राइट वाला सेक्शन हो गया, जितनी कंपनीज है आपको उतने सारे नाम आ जाएंगे। आजकल मैंने बाय द वे काफी कंपनीज स्विच की है, तो फिर मेरे पास रिज्यूमे में अगर मैं सारी कंपनी के नाम लिखूँ तो वो जगह नहीं बचती, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि टॉप कंपनीज या फिर जिनके प्रोजेक्ट मेरे को हाईलाइट करने हैं वो कंपनीज लिख के, प्रोजेक्ट लिख के छोड़ देता हूँ, और लास्ट की बाकी जो अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो फिर मैं वो एक ही कॉलम के अंदर, मतलब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिस दिस दिस, कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं करता बेसिकली उसको रिज्यूमे में, और वो सेंस भी नहीं बनाता। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे आपके पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होंगे लिखने के लिए, बट स्पेस कम होगा, तो स्पेस को स्पेशली एक्सपीरियंस्ड लोग समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सिड हम लोग सिड इज सेइंग कि हिंदी में समझने में उसको थोड़ी तकलीफ हो रही है। सिड वी आर गोइंग टू डू द सेम सेशन इन इंग्लिश आल्सो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑलराइट, अब बात करते हैं राइट्स वाले कॉलम में लिखना क्या क्या होता है, ठीक है। एक एक करके उठाते हैं, एजुकेशन, स्किल्स एंड लिंक्स पे। लिंक्स में क्या होना चाहिए वो बता दिया, एजुकेशन और स्किल्स दो पॉइंट थे जो कि मैंने टच नहीं किए थे। एजुकेशन वाले में आपको करना चाहिए कि सबसे पहले तो 10th एंड 12th के मार्क्स आर स्ट्रिक्ट नो, ठीक है। और क्या क्या एजुकेशन ले सकता है बंदा? बंदा बैचलर डिग्री ले सकता है, मास्टर्स कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, और मे बी और भी सुपर स्पेशलाइजेशन, डबल पीएचडी वगैरह कुछ भी कर सकता है, राइट। ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए कि जो आपका मोस्ट रीसेंट एजुकेशन वाला चीज़ है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आपने मास्टर्स किए और बैचलर्स किए, ये दो डिग्री अगर आपके पास है तो आप मास्टर्स पहले लिखोगे और बाद में लिखोगे भी बैचलर्स। अब यहाँ पे भी ये चीज़ है कि अगर आपका जो बैचलर्स डिग्री का कॉलेज है वो बहुत अच्छा नहीं है या फिर बहुत रेलिवेंट नहीं है, जैसे कि अगर आपने मान लो एमबीए किया है, ठीक है, एमबीए आपने किया है आईआईएम से, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर उस टाइप की किसी रोल में जाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट रोल में, रिस्क एनालिस्ट या फिर कंसल्टेंट टाइप के रोल में जाना चाहते हैं, तो मेरा अनलेस आपका, और हाँ उससे पहले भी बैचलर्स में मान लो आपने इंजीनियरिंग की है किसी टीयर 2 या टीयर 3 टाइप के कॉलेज से, तो वो चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। टिपिकली आपके रिज्यूमे में वो चीज़ होनी चाहिए जो कि आपकी बेस्ट पेंटिंग पोर्ट्रे करे, राइट। लाए मत करो रिज्यूमे में, बट वो सच भी मत लिखो जो कि जिससे जान के लगे कि यार इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप अपनी जो बेस्ट चीज़ है ना वही लिखो रिज्यूमे में। अब दूसरा क्वेश्चन जो टिपिकली मेरे को पूछा जाता है, काफ़ी लोग पूछते हैं, वो ये है कि एजुकेशन के अंदर मैं अपना सीजीपीए लिखूँ या ना लिखूँ। तो मेरा वही कहना है कि इसके आप लिख सकते हैं, पर आप लिखो तभी जब अगर आपका सीजीपीए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप सिर्फ अपना कॉलेज का नाम, कौन सी डिग्री की, ये सब लिख दीजिए और ड्यूरेशन लिख दीजिए, वो काफ़ी है। सीजीपीए अगर आपका मतलब 8, 8.5 या फिर 9 से ऊपर है तब लिख सकते हो। 8 भी मैं सजेस्ट करूँगा ना लिखो, और 7 तो मतलब मत ही लिखो। 8 है तो 8 से कम तो मत लिखो, ठीक है। स्किल्स की बात करूँ तो ये ना रिज्यूमे का सबसे अम्यूजिंग पार्ट लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें बंदा कुछ भी लिखता है, उसने अगर एक टेक्नोलॉजी सुनी भी है ना वो भी चीज़ लिख देता है इसमें, तो वो चीज़ें ना करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है मेरे लिए। अगर मैं कभी भी किसी बंदे को इंटरव्यू कर रहा हूँ और मेरे को दिखता है कि यार इसने रिज्यूमे पे तो लिखा हुआ है स्किल, और मैंने उसको बोला कि यार इस स्किल की एक क्वेरी लिख के देना और उसको नहीं है, राइट। अगर आप उसका मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक पे नहीं है ना तो फिर वो चीज़ें मत लिखो। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे पाइथन में स्क्रिप्टिंग आती है, मैं थोड़ी बहुत पाइथन यूज़ कर लेता हूँ, और फाइल कैसे ओपन होती है ये सब मेरे को नहीं पता, फॉर लूप, इफ लूप वगैरह वो सारी मतलब लूप्स वगैरह जो है बेसिक जो चीज़ें होती है, सिंटैक्स होता है वो आता है, बाकी चीज़ें मैं गूगल करके कर सकता हूँ। पर क्योंकि मेरे को गूगल की ज़रूरत पड़ती है, मैं ये स्किल अपने रिज्यूमे में नहीं लिखता, क्योंकि अगर मेरे से इंटरव्यू में कोई पूछेगा कि ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ पाइथन में, मैं नहीं लिख पाऊंगा, राइट। तो रिज्यूमे पे सिर्फ वही स्किल लिखो
जो जिसमें आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बना पाओ, राइट। जैसे कि मान लो एक टू डू ऐप ही बनानी है, जैसे स्नेक एंड लैडर वाला गेम बोला था, राइट। अगर मैं किसी आपको दे दूं कि स्नेक एंड लैडर वाला गेम बनाओ, तो आप उस लैंग्वेज में वो गेम बिना गूगल करे और बिना डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली आप रेफर कर सकते हैं आईडी में अगर प्रोवाइड होती है तो, बट बिना गूगल करे आप उसका कोड लिख पा रहे हो। अगर ये सही है तो ही उस स्किल को मेंशन करो। ये चीज डेटाबेस के लिए भी ट्रू है। डेटाबेस में कई बार लोग क्या करते हैं कि माई एसक्यूएल भी लिख देंगे, ऑरेकल भी लिख देंगे, पोस्टग्रेस भी लिख देंगे। अब उनसे पूछो कि यार अच्छा माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस में डिफरेंस क्या है, उनको नहीं पता। तो ये चीजें मत करो। अगर आपके तीनों अलग, मान लो मैं मान रहा हूँ कि आपने तीनों में काम किया है, पर अगर आपको डिफरेंस नहीं पता ना, तो फिर आप ये सिर्फ ये लिख दो एसक्यूएल सिस्टम। इसका मतलब है कि आपको क्वेरी करना आता है एसक्यूएल में, पर उनका डेटाबेस में क्या क्या, डेटाबेस लेवल पे क्या डिफरेंस है वो नहीं पता। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कुछ लिख रहे हो, मान लो आप लिखते हो कि जावा 8 पे काम किया और जावा 11 पे काम किया और जावा 7 पे काम किया। अगर आपको इनमें डिफरेंसेस नहीं पता कि इनके अंदर कौन से, जावा 7 में जैसे लैम्डा वगैरह नहीं थे, जावा 8 में आ गए, तो अगर आपको ये सब नहीं पता है, या फिर मैं बोलूँ तो इंटरफेस में मेथड्स नहीं लिख सकते हो जावा 7 में, जावा 8 में लिख सकते हो। इस टाइप के अगर आपको डिफरेंसेस नहीं पता तो फिर वो बेटर है आप सिर्फ जावा लिख दो कि मैं बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ जावा में। अब मेरे को कोड बोलोगे मैं जावा में लिख दूंगा। 8 वगैरह या फिर 8 या 11 या 15 मेरे को नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिक स्किल लिखो, जो लिख रहे हो वो उसको आप सब्सटैंशिएट कर सको। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा था ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपने को रिज्यूमे बनाना कैसे है। अब थोड़ा जूम करते हैं। हमने एक वीडियो की थी रिज्यूमे पे कि हाउ टू मेक रिज्यूमे। लेट्स होगा। So, हमने क्या बोला था कि अपने यूजर को कि हमें रिज्यूमे भेजिए, और उस रिज्यूमे को हम लोग, मतलब जो हमारा रिज्यूमे सेशन होगा उसमें लाइव बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इस रिज्यूमे को अच्छा बनाने में। तो मैं कुछ ऐसे रिज्यूमेस खोल के शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर उनको देखेंगे क्या 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 गलती है उसमें, जो हमने अभी सीखा उसी के बेसिस पे क्या 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 गलती है इसमें, और उनको कोशिश करेंगे कि अच्छा बना। ठीक। बाय द वे दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो इसमें ये मानने की बात नहीं कि यार आपको मतलब कोई नीचा दिखाने की बात मत समझना प्लीज। ये प्राइमरी एम यही है कि जिन्होंने रिज्यूमे भेजे है, थैंक यू सो मच। आपका भी मतलब रिज्यूमे जो है वो बेटर होगा, प्लस जो हमारे लाइव ऑडियंस देख रहे हैं वो भी देख के समझ सकते हैं, राइट। गलतियां होती ही इसलिए ताकि हम उनको सुधार सकें और बाद में अपना अच्छा वर्जन बना पाए, राइट। ठीक है, तो पहला रिज्यूमे मैं खोलता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आई थिंक आपको दिख रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया है कि अपना ऊपर नाम और नंबर लिखा है, वो मैं ऊपर स्क्रॉल करके नहीं दिखाऊंगा, पर यहाँ पे इसने समरी लिखी है। अब समरी वाला कंसेप्ट देखिए ऐसा है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समरी लिखना मतलब ये है कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो एज एन इंटरव्यूअर या फिर एज एन एम्प्लॉयर मैं ये सोचूंगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ी है। अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी तो फिर आप अप्लाई क्यों कर रहे हो, है ना। और अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और आप अप्लाई कर रहे हो, वो दिखाता है कि आपने जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हम काम करेंगे एमएल पे, तो आप उस चीज के लिए रेडी है। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है समरी, आपका रिज्यूमे पूरा रिज्यूमे ही एक समरी है, राइट। तो वो चीजें नहीं लिखनी चाहिए। दूसरी गलती जो यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे इसने 2 पेज में रिज्यूमे बनाया है ना। 2.5 साल एक्सपीरियंस है, 2.5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा 2 पेज में रिज्यूमे बना रहा है, वो थोड़ा गलत है। ये 2 पेज में स्पिल ओवर मेरे ख्याल में वो इसलिए भी रहा है क्योंकि इसने 1 पेज लेआउट यूज किया है। अगर आप यहाँ से समरी वाला टैब हटा देंगे और यहाँ पे एक कॉलम ला देंगे जिसके अंदर आप ये टेक्निकल स्किल जो है वो एक लेफ्ट कॉलम में चली जाएगी सारी, एजुकेशन जो है वो लेफ्ट कॉलम में चला जाएगा, अचीवमेंट जो है वो लेफ्ट कॉलम में चली जाएगी, ट्रेनिंग जो है वो भी एक लेफ्ट कॉलम में जा सकती है, राइट। तो आपके पास राइट कॉलम के लिए सिर्फ एक वर्क एक्सपीरियंस और पर्सनल प्रोजेक्ट जो है वही हो जाएगा। जो अच्छी चीज इसने की है वो ये है कि हर प्रोजेक्ट को इसने एक स्पेसिफिक इसमें लिख रखा है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो पढ़ने में मेरे लिए काफी इजी है। सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड Amazon Pay and Paytm wallet enabling seamless payment for users। इसमें बेसिकली पता भी चल रहा है कि हाँ ठीक है, इसने इंटीग्रेट किया है Amazon Pay को और Paytm वॉलेट को कहाँ पे, रेव सर्विस में। कब से कब कर रहा है काम ये भी पता चल रहा है। जो डेजिग्नेशन थी वो भी यहाँ पे आ रही है। लोकेशन नहीं आ रही है, पर लोकेशन जो है वो मैंडेटरी रहता भी नहीं है। लोकेशन या तो आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हो तब वैलिड रहता है,
या फिर वैलिड रहता है कि कई बार कंपनी होती है कि अगर वो बैंगलोर के लिए हायर कर रही है, वो दिल्ली वाले बंदे को हायर नहीं करेगी। मतलब अगर आप दिल्ली में भेज रहे हैं, क्योंकि रिलोकेशन वगैरह का चक्कर रहेगा, अब तो कोविड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्री कोविड टाइम्स में कंपनी क्या चाहती थी कि बंदा अगर बैंगलोर का बैंगलोर में ही है तो फिर मतलब वो आना जाना ईजी रह जाता है। दिल्ली से है तो फिर फ्लाइट पकड़ेगा, फ्लाइट लेके आना पड़ेगा उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए, तो कॉस्ट बढ़ जाती है इंटरव्यू की उनके लिए। अच्छी कंपनी ज़्यादातर ऐसा नहीं करती, खराब कंपनीज का मैंने ज़्यादातर देखा है कि खराब कंपनीज में ही ऐसा प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है। तो हाँ, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर इसने डाल रखा है पर्सनल प्रोजेक्ट। पर्सनल प्रोजेक्ट भी सही है। मेड अ स्केलेबल लो लेटेंसी हाईली अवेलेबल चैट यूजिंग रेडिस पब्सब। एक चीज़ जो कर सकता है कि यहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजी का नाम ले रहे हैं तो मे बी आप उसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि बजवर्ड्स को मत करो, स्केलेबल हाई लेवल लो लेटेंसी हाईली अवेलेबल, ये सारे बजवर्ड्स है। बट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, जैसे रेडिस पब्सब की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो। डिप्लॉयड एंड एडब्ल्यूएस हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि उससे मेरे को पता चलता है कि अच्छा आपको एडब्ल्यूएस आता है। ठीक है, टूल्स यूज नीचे लिख रखा है, वो भी सही है। आप टूल्स टेक स्टैक वगैरह करके कुछ भी इस टाइप का चीज लिख सकते हैं। एक चीज जो मिसिंग है स्पेशली वर्क एक्सपीरियंस में, वो ये है कि इसने ये रेव कार में ये किया काम किया, तो इनका इम्पैक्ट क्या था प्रोजेक्ट का। इन हाउस डैशबोर्ड बनाया तो उसमें इम्पैक्ट क्या था। इम्पैक्ट कैसा हो सकता है दोस्तों? इम्पैक्ट हो सकता है कि आपने काम किया जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ गया हो, या फिर डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हो। मतलब प्रोजेक्ट किया तो उसका कुछ तो काम हुआ होगा ना, तो वो काम पूरा हो गया तो इम्पैक्ट क्या हुआ बिजनेस पे, वो चीज़ लिखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी हायर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। SD3 के लिए तो ये मस्ट है, राइट। लोअर रोल के लिए फिर भी चलता है, वो थोड़ा बताता है कि आपने लीडरशिप क्वालिटी है और किस टाइप की क्वालिटी, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करता है। बट हायर रोल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़े जूनियर रोल्स के लिए फिर भी चल जाएगा अगर आपने नहीं लिखा इम्पैक्ट, क्योंकि कई बार क्लैरिटी नहीं होती है कि प्रोजेक्ट में कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। पर शुरुआत से अगर आप ये बना के चलोगे ना कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ज़्यादा सही रहेगा। अगेन, ये सब लिखने के लिए, आप ये सब लिख पाए, इसके लिए मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या लिखना है। आपको कि जो गिटहब के होम पेज पे सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग लिखनी थी, वो सब आप बना के चलोगे तो इजीली हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा रिज्यूमे जो हमें भेजा है जी। तो दूसरा रिज्यूमे है ऐसा, यहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, फिर प्रोफाइल है, स्किल्स वगैरह है, एक्सपीरियंस है एंड एजुकेशन लिखा हुआ है। इसके अंदर भी इवन वो चीज़ें सारी लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इन्होंने ऐसी लग रखी है, स्किल्स एंड एजुकेशन भी है, बट बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने समरी डाल रखी है, जो कि नहीं डालनी चाहिए आइडियली। मैंने पिछले रिज्यूमे में बात की थी इस चीज़ की। एक्सपीरियंस के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, जो कि अच्छी बात है। एक चीज़ जो और ऐड कर सकते हैं वही है इम्पैक्ट की, जो मैंने पिछले वाले रिज्यूमे में बनाई थी कि इम्पैक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा इन चीज़ों का, वो डाल सकते हैं। और टेक स्टैक की बात की है, वो भी मतलब टेक स्टैक भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। पॉइंट्स में लिखेंगे अगर आप तो वो ज़्यादा रीडेबल रहता है। एक्सपीरियंस के जो ये नीचे नीचे पॉइंट्स हैं, वो सब अगर आप देखेंगे तो वो रीडेबिलिटी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना अदरवाइज ये सही ही लग रहा है। प्रोजेक्ट्स अगर आपके एक्स्ट्रा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप इस इंडस्ट्री में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो मे बी 5 साल के हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स कुछ ज़्यादा डाल सकते हो। आप 2018 से लगभग 3 साल से इस कंपनी में, ग्लोबल पेमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हो तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए। इधर भी आपने मतलब लगभग 3 साल काम किया है, तो DXC टेक्नोलॉजी से भी में भी आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह ज़्यादा डाल सकते हैं। अब रुक करते हैं अपने तीसरे रिज्यूमे की तरफ। तो ये है हमारा तीसरा रिज्यूमे जिसकी मैं बात कर रहा था। अब अगर आप इसमें फॉर्मेट, मतलब इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं फॉर्मेटिंग वगैरह के हिसाब से। यहाँ पे आपने समरी डाल रखी है, जो कि नहीं डालनी चाहिए। 2 कॉलम लेआउट रखा है, वो ठीक है, बट ये कॉलम काफ़ी मेरे ख्याल से अब्यूज़ किया गया है, राइट। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस लिखा है, और यहाँ पे भी कुछ कंक्रीट समझ नहीं आ रहा है। बीइंग अ स्टूडेंट आई हैव लर्नड रिसाइकलर व्यू, एसिंग टास्क, रेट्रोफिट,
ब्रॉडकास्ट सिस्टम, काफ़ी जार्गनिश लैंग्वेज लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सिर्फ उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे आप मेरे ख्याल से आप को मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करिए जहाँ पे आप ये अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, आप अपना प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, राइट। प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको कोई नहीं होता, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कीजिए, वो चीज़ें लिखिए। अगर आपने एकेडमिया के लिए ही कुछ प्रोजेक्ट्स किए तो वो चीज़ें लिख लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मैं कहूँगा कि ऐसे स्पेस वेस्टेज जो होती है वो थोड़ा अजीब लगता है। स्किल्स जो है वो लेफ्ट साइड में आ सकती थी। आपने स्किल्स लिख दी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बट एंड्रॉइड का कोई प्रोजेक्ट नहीं लिखा है, राइट। एक प्रोजेक्ट है जो कि यूनिटी बनाया है आपने, तो यहाँ पे भी एक मिसिंग है कि क्या क्या चीज़ें आपको आपने यूज़ किया डिक्शनरी ऐप में, क्या क्या टेक्स्ट टैग था, वो सारी चीज़ें मिसिंग है। प्लस लेआउट जो मैंने सजेस्ट किया है आप उसमें जाके लिखिए। लेआउट के लिए मैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छा लिंक शेयर करता हूँ, आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेंट यही था मोटा मोटा कि रिज्यूमे बनना क्या चाहिए। आप 2 कॉलम लेआउट यूज़ करिए, लेफ्ट कॉलम में स्किल्स, एजुकेशन और लिंक्स वगैरह डालिए। राइट कॉलम में अपना रखिए, राइट कॉलम रखिए मेनली फोकसिंग ऑन की प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप वगैरह क्या क्या किया आपने। एंड टॉप पे अपना नाम और फोटो, अगर आप फोटो सिर्फ तब डालना जब आप स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स फोटो रहने दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है लोगों के, और क्वेश्चंस के बारे में सेंड योर रिज्यूमे बाय द वे जो भी है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका रिज्यूमे रिव्यू करें और मे बी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें आपके रिज्यूमे के लिए, प्लीज़ हमें आप youtube@scaler.com पे भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज्यूमे फीचर ना करें, मतलब जैसे आज हमने 3 रिज्यूमे फीचर किए, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सप्लिसिटली मेल में स्पेसिफाई कर देना कि मतलब आपको सिर्फ रिव्यू चाहिए, और आपका फिर हम आपका रिज्यूमे फीचर नहीं करेंगे किसी भी लाइव रिज्यूमे सेशन, ठीक है। So Shifali is saying, I use overly for my resume. I have made a parent resume in which I have added each and everything that I've done till now. Now, according to job, I copy paste. Yes, Shifali, you can do that. Overly is a very good, that is what LaTeX, right? Works on, like, it has LaTeX compiler, and you can use that. And yeah, that seems to be your approach seems to be a good one. That you keep everything, each and every project that you've done in one resume, and then copy paste it from there to make a one-page resume for the job description that you're looking at. Kavya is asking any perfect resume example for freshers. Kavya, I have just pasted one link. You can look into that, right? And then in the resume also, resume video also, there is suggested layout. प्रोजेक्ट्स में क्या लिखना है वो तो आप ही को देखना पड़ेगा, राइट। कि आपने जो हर बंदे के प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, बट लेआउट मैंने आपको बता दिया है कि कैसा कैसा रखना है। फ्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जॉब रहेगी, रिज्यूमे तो आप अच्छा बना सकते हैं, पर रिज्यूमे में लिखने के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है अभी लिखने के लिए, तो प्रोजेक्ट्स कीजिए। प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है आपको कॉलेज में नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक बेहतर चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आपको एक सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर चाहिए और आप प्रोजेक्ट्स कहीं घर बैठे कहीं भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स है, उनमें जाके कंट्रीब्यूट करो, देखो कि क्या क्या कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ होती है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो। वो भी नहीं हो रहा है तो अपना कुछ सोचो और उस पर बना दो। आप बहुत छोटे से छोटा गेम भी बना सकते हो, बोल सकते हो मैंने हैंगमैन बनाया, वो गेम भी बना दो, उसको पूरा कोड करके गिटअप पे कोड डाल दो। तो जो भी आप बना रहे हो ना, उसको गिटअप पे डालते दो। और अगर आपको इंडस्ट्री गेट का प्रोजेक्ट चाहिए तो रियल वर्ल्ड करके एक साइट है, गिटअप, रियल वर्ल्ड गिटअप सर्च करना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है, जैसे मीडियम वेबसाइट है, उनका पूरा बैकएंड लिखा हुआ है, फ्रंट एंड लिखा हुआ है। तो अगर आपको बैकएंड सीखना है तो आप रियल वर्ल्ड पे जा सकते हो, उनका बैकएंड वाला पार्ट जो है वो API स्पेक पे रखे होते हैं, उसको देख के बना सकते हो। एक बार आपने ये बना दिया, उसको फिर अपने गिटअप पे डालो और वो गिटअप का लिंक अपने रिज्यूमे में डालो। वो एक पूरा सर्कल हो जाता है कि आपने एक एंड टू एंड डेवलपमेंट सीख भी ली पहले करने के बाद, और करने के बाद आपने रिज्यूमे भी डाल, तो आपका रिज्यूमे भी सही करना है। बाकी जो स्किल्स वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फ्रेशर्स पे मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो है कि बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ 3 या 4 स्किल भी लिखोगे वो भी बहुत अच्छी बात है।
पर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने वो स्किल लिखी है तो आपको आती है। 50 स्किल लिख के उनमें से 1-2 आना या 50 में से 5-6 आना इज़ वर्स दैन 5 स्किल लिख के 5 स्किल, है ना? तो 50 में से 10 भी बेकार ही है। मैं तो कहूँगा अगर आप 50 लिख रहे हो तो आपको 50 आनी चाहिए, वरना आपको जितनी आती है उतनी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। Manish is saying ATS parses two column layouts as well. Yes, it can. मतलब 2 कॉलम लेआउट तो काफ़ी कॉमन है, तो पार्स हो जाता है। आप जो मैंने लिंक भेजा है वहाँ पे डाल दीजिए, वो पार्स कर लेगा। हाँ, सतीश कुमार इज बेसिकली आस्किंग कि मैं आई थिंक क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेशन कोर्स जो करते हैं वो डालने चाहिए या नहीं डालने। देखो मिक्स राय है, अगर आपके पास उससे बेटर है दिखाने के लिए एजुकेशन में तो आप वो डालिए। मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग डालते हैं, इतनी ज़्यादा वेटेज मैंने आज तक कभी नहीं दी है सर्टिफिकेशन देख के किसी चीज़ की। चीज़ें जो मेरे लिए मैटर करती है वो है अगर स्पेशली मैं कॉलेज से हायर कर रहा हूँ तो फिर मेनली उसकी स्किल्स और अकम्पलिशमेंट वगैरह में क्या लिखा है। और या तो कॉलेज वगैरह देख के काफ़ी हायर करती है कंपनीज, और कॉलेज अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो बहुत मैटर करता है कि आपने अकम्प्लिश क्या किया। आप टॉप कोडर वगैरह उस टाइप की रैंक्स डालिए। सर्टिफिकेशन मेरे ख्याल से आज की डेट में हर कोई बांट रहा है, तो सर्टिफिकेशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं। इवन इफ वो कोर्सेरा वगैरह का भी है तो बहुत ईजी है वो पाना। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि मतलब जाके महंगे महंगे सर्टिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए पैसा दे। कोर्सेरा पे काफ़ी चीज़ें फ्री है, फ्री में अगर मिल रहा है आपको कोर्सेरा का, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए देना मैं नहीं समझता वो सही है। बेटर चीज़ जो मैं कहूँगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल यूडेमी या फिर कोर्सेरा से कोई कोर्स कंप्लीट किया है, वो कोर्स को कंप्लीट करके अगर आप गिटहब पे बना के कुछ डाल सकते हो तो वो चीज़ डाल दो, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बजाय कि एक सर्टिफिकेशन। आजकल लोग मतलब मैं जानता हूँ ऐसे भी लोगों को जिनको मैंने हायर किया जो कि कॉलेज भी नहीं गए, राइट, बट उनकी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि उनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में ही बिल गेट्स वगैरह ही कॉलेज ड्रॉप आउट जो कि काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। मैं खुद बहुत ज़्यादा कॉलेज ड्रॉप आउट्स को जानता हूँ जो कि सिर्फ अपनी स्किल और विल की वजह से जहाँ है वहाँ तक पहुँचे। अगेन वही तो केशव पूछ रहे हैं कि अगर रेटिंग वगैरह खराब है तो उनको उन चीज़ों को रिज्यूमे में डालना चाहिए या नहीं। आंसर इज बिल्कुल नहीं, बता लो, बिल्कुल मत डालो। और क्योंकि चीज़ें हमें वही डालनी है रिज्यूमे में जो कि आपके बारे में एक अच्छा परसेप्शन दे लो। अगर मैं आपका रिज्यूमे उठा के पढ़ रहा हूँ और मेरे को फिर अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, केशव ने कुछ तो किया है ज़िंदगी में, हमारे कंपनी में मेरे साथ भी आके काम करेगा तो फिर मज़ा है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए आपका रिज्यूमे पर। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो अगर आप रैंक अच्छी कर सकते हो तो मतलब नथिंग लाइक इट, आप भी सीखोगे, कंपनी वाले को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा, नथिंग लाइक इट। मतलब वो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप चाहते हो कोड शेफ में देखते हो कि हाँ मेरी रैंक अच्छी है, अच्छी तो करनी पड़ेगी, तो फिर अच्छी करते हैं। उसके अच्छी करने के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीएसएल को प्रैक्टिस करोगे तो कंपनी के इंटरव्यू भी हेल्प करेगी, तो वो तो करना ही चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मे बी अगले हफ्ते ही मेरा इंटरव्यू है या फिर अगले हफ्ते ही शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दे रहा हूँ अपना रिज्यूमे, तो उस केस में मैं कहूँगा कि मत डालो। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि इन टाइप की चीज़ों में ना आप ट्राई करना कि आपकी प्रोफाइल अच्छी रहे, क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी रहेगी ना तो आपके डीएसएल वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजीली निकाल पाओगे। तो जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मान लो अमेजोन आती है आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि काम करने के लिए, इंटरव्यू करती है, तो काफ़ी सही रहेगा आपकी अगर आपने पहले से फाउंडेशन बना रखी है, आपका डीएसएल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इन सब चीज़ों। Keshav saying, can I send your resume? Yes, please do. Our email ID is youtube@scalar.com. Anyone who wants to get their reviewed, please feel free to do that. If you want us not to use your resume for any of the resume rose session, please mention that in the email. We'll just give you the honest feedback, and we won't use your resume as well. And also, whenever you're sending your resume, make sure you blur out your contact number and email address, so that when I'm screen sharing it, by mistake those details are not shown to the users. And repeat this in Hindi as well, since this is a Hindi session. तो आप लोगों को अपने रिज्यूमे भेजने हैं तो प्लीज़ youtube@scalar.com पे भेज दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका रिज्यूमे यूज़ ना करें किसी रिज्यूमे सेशन में, तो प्लीज़ ये चीज़ ईमेल में मेंशन करें। Should I write courses training?
ये मैं बता ही चुका हूँ केशव, जरूरी नहीं है लिखो, अगर आपके रिज्यूमे में स्पेस बच रही है तो लिख सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास और कुछ नहीं है बेटर दिखाने के लिए तो आप डाल सकते हो। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स टू राइट इन योर रिज्यूमे एज अ फ्रेशर? केशव, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस दूंगा क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स में। माने कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जो कि डिप्लॉय कर दिया है, जैसे कि वेबसाइट बना के आप, कोई बंदा उसको जाके चेक कर सकता है, वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट सिर्फ आपके आईडी के अंदर ही पड़ा हुआ है तो वो मतलब उसका कोई मायने नहीं है, आप वो प्रूव नहीं कर सकते, कोई पूछेगा भी नहीं उसके बारे में। तो ट्राई करो कि कम प्रोजेक्ट्स भी करो बट क्वालिटी प्रोजेक्ट्स करो, तो प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Ayushi says, as a working professional, if I mention multiple projects for 5 years experience, how can I add tech stack, project description, impact, responsibilities, etc. Everything in one column on the right side. Idea is, Ayushi, don't mention all the five. You in the last 5 years you might have done, 20 projects, but वो 20 projects मत लिखो. Write only the top ones. Top ones also. Let's suppose I'm applying for Uber payments team. Then the projects that I've done, which is in line with the payments Uber payment team का जो है, if that is in line, then I'll write only the payments project. I'll highlight the payments project done in all, let's say, all the 3-4 companies that I've worked in. Similarly, tech stack and impact also makes an important role. For example, let's say I have a project which is not in line with payments team, but वहाँ पे impact बहुत ज़्यादा था. जैसे one project that I typically write in my resume is around Hotstar personalization, that I handled 3 million concurrency or 10 million concurrency. So that is the impact. That is a metric that people love to listen about, right? कि this person was able to handle this much concurrency. How did he handle it? It's good to so try to write such key points which will basically trigger a spark in the mind of the interviewer that hey, it's worth to talk to this particular person. Let me just spend at least 5 minutes just interacting with this particular person. So add those kind of things in your resume. Tech stack, project description, impact, responsibilities. I think yeah. So one line description on what the project was. One line, what was your role. So the way to justify your role or to basically give people a hint that this was your role, what you can do is you can use action verbs like created a backend API for XYZ system, and this XYZ system need not be a specific jargon that you use within your company. It should be a word which is recognized outside the industry also, right? Then is how can I think impact and response, like impact also you can just like write one line and then keep it in bold. Cool. Abhishek says, hi, I'm going to apply for my first internship. How should I go about the right section of the resume since I only have 2-3 good plans? Now, Abhishek, 2-3 good projects on your resume is a goal, right? Many students don't even have one, right? So make sure when you have a project, you explain each and everything, right? Having 2-3 projects means you also have an opportunity to use that particular space to explain it in a very crisp and clear manner to the person who's reading your resume. So utilize that space and utilize the extra space that you're getting in explaining what your role was, what was your challenges, right? So highlight that tech stack, that the kind of tech stack that you use. If you evaluated 2 tech stacks, for example, let's say you evaluated coding in Python and you coding in Java, or maybe you evaluated SQL systems or no SQL systems. So you can write evaluations also. That the same project I've evaluated in XYZ. For you, impact would not make sense, but that you have done some sense of evaluation, that will be really nice. And since this is your first, first internship application, you're applying for your first internship, mention the positions of responsibility also. These will be if you're a part of some college clubs, if you have taken active participation in non-academia, or if you take part in hackathons. By the way, for students, it is very essential that you build your online profile on HackerRank and CodeChat and InterviewBit and like similar platforms, right? So wherever you are finding a chance, wherever you are getting
questions around DS algo, and they rank you based on that. There are hackathons that are usually conducted, so you can apply on those hackathons, and if you get some prize, you can write those things in your resume. तो the benefit is कि हाँ, इन चीज़ों से बेसिकली हमें पता ये चलता है कि आपने कितना किया है। अगर आपका DS algo में कोई हैकाथॉन में कोई रैंक आई हुई है, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को DS algo तो आता है, बात करके देखते हैं। और मेरी मानोगे, मैंने मतलब कम से कम 200-300 इंटरव्यू लिए है अपनी लाइफ में। मेरा फ्रेशर से सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका DS algo अच्छा होना चाहिए, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं ये नहीं मेरे को नहीं मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उस बंदे को जावा आनी चाहिए, मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको C++ आनी चाहिए, मेरी ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको मतलब कोई और लैंग्वेज में आनी चाहिए, राइट। एक लैंग्वेज में बेसिक कोडिंग आनी चाहिए जिसमें वो DS algo करता है, और जिसमें वो DS algo करता है उसको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप C++ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या होता है, अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जावा कर रहे हो तो आपको करेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए, कंपैरेटर क्या होता है वो आना चाहिए। इतना का वो कोड लिखा है, दैट इज मतलब गुड इनफ। उतना मतलब मैं टिपिकली नहीं देखता हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन नहीं होता है, बट मैं टिपिकली सिर्फ यही देखता हूँ कि यार अगर मेरे को एक रिज्यूमे में एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिससे मैं ये इन्फ्रेंस निकाल सकूँ कि ये बंदा कोड कर लेगा, तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके रिज्यूमे में कुछ एक ऐसा इन्फ्रेंस रहना चाहिए जिससे कि ऑब्वियस रहे कि हाँ यार मैंने कोड किया है और मैं आगे आके भी कोड कर सकता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैं सिर्फ बंदे को DS algo पे ही टेस्ट करूँगा और किसी चीज़ पे टेस्ट नहीं करूँगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि उसको सिस्टम डिज़ाइन आता होगा या फिर कुछ भी इस टाइप की चीज़ आती है। एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना मेरे मानने में गलत है, मतलब लैंग्वेज कोई भी सीख लेता है। तो DS algo पे फोकस करो, DS algo के कॉन्टेस्ट वगैरह अटेंड करो, वो हेल्प करेगा। कुड यू शेयर द लिंक अगेन? पवन, मैं एक काम करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो DD रिज्यूमे है, DEEDY रिज्यूमे सर्च करो, आपको मिल जाएगा गूगल पे। पहला दूसरा रिजल्ट ही होगा। ओपन लीफ करके वेबसाइट है, वहाँ पे आता है, ठीक है। DD रिज्यूमे, DEEDY रिज्यूमे, ओके। Any recommendation for Django specific courses? Kumar, you are in luck. We are starting introduction to Python course live at 11. Next is introduction to Django. तो अटेंड करना, उसमें आपको पाइथन के बारे में बताया जाएगा और वहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब रिज्यूमे वाले से ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बट मेरा इन जनरल अगर मेरे से रिज्यूमे पूछोगे, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के आगे नहीं जाता, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आपको आर्टिकल्स और वीडियोस और ये सब चीज़ें नहीं मिलनी बंद हो जाती है। जॉब में एक्सेल करने का एक ही तरीका है कि आप रिकमेंडेशन पढ़ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो जितने जल्दी वो आदत डाल सकते हो तो बेस्ट है। बाकी मतलब 11 बजे हम वो कंटेंट बताएंगे कि, तो तब आपके आके ज्वाइन करना। केशव सेज उन्होंने DSA का कोर्स किया है, शुड आई राइट दैट डाउन इन देयर कोर्स? नहीं नहीं नहीं। तो केशव जैसे मैंने पहले बताया था कि कोर्सेज वगैरह आप सिर्फ तब डालो अगर आपको वो चीज़ प्रूव करने का और कोई वे नहीं है। DSA आपको आती है वो प्रूव करने के लिए हज़ारों वेबसाइट्स। आप इंटरव्यू बिट पे आइए, इंटरव्यू बिट पे प्रोफाइल बनाओ अपना। इंटरव्यू बिट पे अगर आपका स्कोर बोर्ड जाता है, वो अपने सर्टिफिकेट वगैरह मतलब वो बैचेस वगैरह बता सकते हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, वो बता सकते हैं। लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें जीतते हैं, वो डालो। हैकर रैंक पे कॉन्टेस्ट होते हैं, वो जीतते हैं, वो डालो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन मिलना, पैसे दे के सर्टिफिकेशन मिलते हैं यार, वो कोई मतलब नहीं। Sheetal says, sir, adding one drone or robotics will IoT for SD roles. Is that okay or just an additional skill? तो शीतल, मेरे ख्याल से ये है कि IoT बेस्ड कंपनी में अगर आप अप्लाई करो, जैसे Azure की IoT टीम है या फिर वॉलमार्ट की भी IoT टीम है, उनमें ये चीज़ काम आ सकती है। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रोबोटिक्स और IoT की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे आपके कोर प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर आपके पास बाकी चीज़ें नहीं है, मतलब आप ये एज एन ऑप्शनल चीज़, मतलब अगर आप 10 स्किल्स लिख रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से आती है और आपको कोई रिज्यूमे मतलब इंटरव्यू में पूछे आप बता पाएंगे, तो एक लास्ट स्किल लिख सकते हैं। इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, बट आप SD रोल के लिए लिख सकते हैं। बट ये आपकी कोर स्किल या हाईलाइटेड स्किल नहीं होनी चाहिए SD रोल के लिए स्पेसिफिकली।
यही अगर आप वॉलमार्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आईओटी की अलग से टीम है, ठीक है। काफ़ी कंपनीज है जो कि आईओटीज में ही काम कर रही है, वहाँ पे आपकी ये एकदम टॉप नॉच स्किल हो जाती है, वहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे। तो ऑर्डरिंग भी चेंज होती है आप जिस रोल में और जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तभी जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ पे जाके उनका जेडी जरूर पढ़ना। जेडी में लिखा होगा कि उन्होंने क्या किया है और कितना, मतलब उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक कैंडिडेट के रिज्यूम में, और उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। Manish says, should we mention companies in workplace where we stay 2-3 months or switch better to the company, or if we stay? यार आई थिंक मेरे ख्याल से हटा सकते हो। अगर आपके पास मतलब 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और मतलब काफ़ी कंपनी स्विच की है, तो 2-3 साल महीने का ना दिखाओ तो बेटर है। बट अगर आपका वो मतलब फर्स्ट कंपनी है या फिर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो डाल सकते हो। बट इट इज़ ओके टू skip those experiences. Being a cloud engineer in service-based company, I know Java backend with Spring Boot. Can I apply for a product-based company? And I just joined 3 months. What is the perfect time? तो रत्नदीप, सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप हो, जितने ज़्यादा टाइम रहोगे राइट, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। हम लोग एक सेशन करने वाले हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जाना है। पहला स्टेप ये है कि आपको जैसे रिज्यूमे, जिस फॉर्मेट में रिज्यूमे बताया वही बनाओ, और क्या क्या चीज़ें चाहिए सर्विस टू प्रोडक्ट के लिए, वो हम आपको सेशन में बताएंगे। पर मेनली यही है कि आप रिज्यूमे पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कैसे अनलॉक करनी है, क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए, उस पर मतलब डिटेल 1 घंटे का कॉन्वर्जेशन करेंगे। तो उस पर आइएगा, पूरा 1 घंटे में बताया जाएगा आपको कैसे करना है। Should I write it? I know. I want to know what is considered good rating on the platform as well. यार डाल सकते हो, 3 स्टार डाल सकते हो। ज़्यादा अच्छी है तो वो बेटर रहेगी, बट 3 स्टार भी डाल सकते हो। इट्स नॉट दैट बैड। मैं कहूँगा थोड़ा इम्प्रूव कर लो। इट्स नॉट ग्रेट, बट इट्स इन अ नॉट बैड कैटेगरी। तो नॉट बैड कैटेगरी से गुड में आओ, और नॉट बैड चीज़ डाल सकते हो अगर आपके पास रत्नदीप, हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि स्केलेबल प्रोडक्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, अच्छे रिसोर्सेज बताइए। तो एक तो ये है कि हम सिस्टम डिज़ाइन के प्राइमर सीरीज डाल रखी है, वो देखिए। हाँ, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इसके बारे में। वो क्योंकि वो आपको बस आइडिया देगा कि कितने टाइप की स्केलिंग है, कैसे स्केल करते हैं, एक ओवरऑल पिक्चर बता देगा। बिल्कुल डिटेल में नहीं, बट एकदम बिगिनर या फिर एकदम बिगिनर कंटेंट आना है, ठीक है। इस बिगिनर कंटेंट को लेके हम एक मास्टर क्लासेस शेड्यूल करते हैं संडे को। फ्री इवेंट रहती है, स्केलर पे वेबसाइट पे जाइए, स्केलर की वेबसाइट पे जाके इवेंट्स वाले टैब में जाना। इवेंट्स में आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास होने वाली है। उस क्लास के अंदर हम एक बड़े बड़े टॉपिक्स उठा के डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना है। जैसे कि यूट्यूब कैसे बनाना, 3 घंटे की क्लास होगी, और मैं कहूँगा कि किसी भी टाइप का मतलब आप उस क्लास का कंटेंट कहीं से भी मतलब बाकी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे कंपेयर करके देखेंगे, आपको लगेगा कि वो बेटर है। क्योंकि वो जो जैसे मैं भी लेता हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ें के बारे में डिस्कस करता हूँ जो कि मैंने खुद बनाई है, राइट। अंशुमन के बात करते हैं कि फेसबुक मैसेंजर उन्होंने कैसे बनाया था, वो फेसबुक में पहले काम करता है। मैं बात करता हूँ कि पर्सनलाइजेशन कैसे बनाई थी हॉटस्टार की, या फिर इस टाइप के चीज़ें रहती हैं। ऑब्वियसली कंपनी के सीक्रेट्स नहीं बता सकते, बट एक हाई लेवल आइडिया देते हैं कि ये चीज़ें बनती कैसे। व्हाट्सएप बनाना है तो वो कैसे बनाना है, तो आपको सीखने को भी मिलेगा, और पूरा कॉन्वर्जेशन रहता है। तो आई थिंक वो सही प्लेस है आपको स्टार्ट करना। Regarding impact of present due to my contribution, I find it little hard to find that uniqueness and put it in words. Please suggest how to improve that part. आयुषी, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। मतलब मेरे को भी सेम डाउट होता था 2-3 साल पहले तक। आइडिया इज कि मे बी यू माइट नॉट हैव वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, है ना, पर आपके प्रोजेक्ट ने कुछ इम्पैक्ट बनाया होगा, राइट। अगर आप वो निकाल सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट था, आप वो चीज़ भी डाल सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है कि आपकी टीम वाले ने कुछ काम किया जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया, या फिर आपके मैनेजर ने काम किया जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि उसने क्या किया, अगर आप उसकी सिचुएशन में होते तो वापस आप उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो। और अगर आपको अपने मैनेजर की पोजीशन पर डालते तो क्या आप वो डिसीजंस अब ले सकते हो, नाउ दैट यू नो, यू हैव सीन इट थ्रू, और उस एक्सपीरियंस को बता सकते हो, वो चीज़ें डाल सकते हो। अगर नहीं, अगर आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है,
what rating can be kept in the resume for poster 3, 5, and 7? Yeah, I'll say कि you can start with 3 also, but 5 and 7 are better, obviously. So the better it is, the better it will seem to the recruiter as well, your interviewer as well. अगर ज़्यादा टॉप में है तो वो ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगी वो चीज़ें, ठीक है. Cool. Thank you so much, guys, for joining in. Please like, comment, and share on this video, and please subscribe to our channel. We'll keep on posting and such live sessions where it gives us a chance to interact with you guys, and at the same time give some free quality content that you can take back and think about that and implement it in your life. Chalo. Thank you so much. Bye bye.